بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نافیہ خان۔ اور اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ تم مسیحا ہو اس قوم کے، ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے پیار ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے خدمت اور قومی کاوش کے 100 دن مکمل، قومی یکجہتی، وبا کے پھیلاؤ کو روکنے، معیشت کی بحالی کے لیے NCOC کی مؤثر حکمت عملی۔ آج کا دن بہادر ڈاکٹرز، نرسز، طبی عملے، سیکورٹی فورسز اور کورونا سے لڑنے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ تمام ہیروز کو قوم اور PTV کا سلام۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ۔ NCOC نے کورونا کی روک تھام کے لیے مربوط اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ سینٹر نے جن مشکل حالات میں کام کیا، قوم کو اس پر فخر ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوران SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم عمران خان۔ صدر مملکت کا NCOC کو 100 روز مکمل ہونے پر مبارکباد۔ بحران کی صورتحال میں ایک اچھے ادارے کو بہت جلد قائم کیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بہترین انداز میں کام کیا۔ NCOC کے فیصلوں کی بدولت دنیا کی نسبت پاکستان نے کورونا پر کنٹرول کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے 100 روز مکمل ہونے پر پیغام۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بدولت کورونا کے پھیلاؤ میں کمی ہوئی۔ NCOC نے وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دن رات کام کیا۔ حکومتی کوششوں سے کورونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا تقریب سے خطاب۔ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے طبی استعداد کار میں مسلسل اضافہ، کم وقت میں ہسپتالوں کا قیام قومی جذبے کا عکاس ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے وبا پر قابو پانے کے ساتھ کاروبار زندگی رواں دواں ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور CDA ہسپتال کا دورہ۔ ہسپتالوں میں ڈیوٹی پر معمور طبی عملے کو کورونا وائرس کے خلاف کاوشوں کو سراہا۔ معاون خصوصی نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو گلدستے، ماسک اور سینیٹائزرز بھی دیے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات، مرض کو شکست دینے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ۔ 1,25,094 افراد صحت یاب، مزید 3,387 کیسز کی تصدیق، مجموعی تعداد 2,25,283 ہو گئی۔ 68 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,619 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی جذبے کے تحت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے 100 روز مکمل ہونے پر لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں تقاریب۔ وائرس کے خلاف لڑنے والے قومی ہیروز کی جدوجہد کو سلام۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری۔ ملک بھر میں 22,92,000 ایکڑ رقبے پر آپریشن اور 9 کروڑ ایکڑ سے زیادہ کا سروے۔ 32 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 966 ٹیمیں مہم میں شریک۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر۔ زراعت کی ترقی اور کسانوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے 12 نکاتی میمورنڈم تیار۔ پالیسی سے کسانوں کے مسائل حل ہوں گے، زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، دیہی علاقے ترقی کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا اسلام آباد میں کسانوں سے خطاب۔
پہلی بار ریلوے میں انقلابی بہتری، ادارے میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ML1 منصوبے سے 1.5 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ گزشتہ روز ہونے والا حادثہ کوسٹر ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ شیخوپورہ حادثے میں ہلاک ہونے والے سکھ یاتریوں کی آخری رسومات نوشہرہ کے علاقے خیرآباد کے شمشان گھاٹ میں ادا۔ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ یاتریوں کی میتیں پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے لاہور سے پشاور پہنچائی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ تازہ کارروائی کے دوران ضلع کولگام میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی خواتین ونگ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف کوئٹہ پریس کلب میں احتجاجی مظاہرہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,13,45,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,32,000 سے زیادہ اموات، 64,21,000 صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,32,000 سے بڑھ گئی۔ برازیل میں 63,400 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اور ورسٹرشائر میں بایو سیکیور ماحول میں قومی کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس۔ تمام کھلاڑی فارم میں ہیں۔ ٹریننگ سے مزید بہتری آئے گی۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل پریکٹس میچز اہم ہیں۔ ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مصباح الحق۔ تم مسیحا ہو اس قوم کے
कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौमी खिदमत में मसरूफ अमल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को कायम हुए 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इन 100 दिनों में वबा से निपटने, कौमी यकजहती, बीमारी का फैलाव रोकने और मईशत को बहाल रखने के लिए NCOC ने मौसर हिकमत अमली वज़ा की। ये बहादुर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, कोरोना से लड़ने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। ये अज़्म हिम्मत और जज्बे की एक दास्तान है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी एक हीरो है। पूरी कौम इन तमाम हीरोज को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि ईद उल अज़हा के दौरान भी तयशुदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में NCOC के क़याम के 100 रोज मुकम्मल होने पर इदारे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए तमाम मतलूबा इंतजामी इक़दाम उठाए जाएं और ईद उल अज़हा के दौरान बीमारी की रोकथाम के लिए अवाम में आगही मुहिम भी जारी रखी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि NCOC ने सख्त सूरत हाल में हमारी बेहतर रहनुमाई की और जिन मुश्किल हालात में काम किया, कौम को इस पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने कोरोना की रोकथाम के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की टीम की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल की रोजाना निगरानी से सेहत के निज़ाम की इस्तेदादकार बढ़ाने, काबिल एतमाद डेटाबेस के क़याम, वसाइल के बेहतर इंतजाम और मुनासिब SOPs की तश्कील में इदारे ने मौसर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म को कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि IMF के आलमी इक्तिसादी आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 30 मुल्कों में शामिल है जो वबा के बावजूद इक्तिसादी शरह नमू को -0.4 से +1.1 पर लाया, जबकि खित्ते के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की बरामदात में भी बेहतरी आई। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान वफाकी वज़रा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबों ने वीडियो लिंक के जरिए नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म ने तमाम महकमों और इदारों, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और इंतजामिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मर्ज की रोकथाम के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हंगामी इमदाद फराहम करने वाले इदारों और सफ़े अव्वल में काम करने वालों को भी शानदार खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने SOPs पर अमल करने और चैलेंज का मुकाबला करने में कौम के किरदार की भी तारीफ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के क़याम के 100 रोज मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सेंटर ने बेहतरीन अंदाज में काम किया है। बहरान की सूरत हाल में एक अच्छे इदारे को बहुत जल्द कायम किया गया। NCOC के फैसलों की बदौलत दुनिया की निस्बत पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर एहतियात करके कोरोना का फैलाव रोका जा सकता है। अल्लाह की मदद से कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने काम किया। एक बड़ा अच्छा काम इन्होंने 100 दिन के अंदर मुकम्मल किया। इनकी कमेटियां तो सेंटर तो बहुत सारे बनते रहते हैं, मगर जो लोग इसको लेकर लीड कर रहे थे, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। असद उमर साहब ने इसकी सदारत की। SAPM स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ जफर मिर्जा साहब ने, और इसकी जो NDMA के चीफ हैं उनका काम, फिर फैसल सुल्तान साहब का काम, फिर जितने लोगों ने काम किया, उसके साथ साथ प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स ने इसके अंदर काम किया, उनके चीफ सेक्रेटरीज ने काम किया। तो पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस के एतबार से एक बड़े अच्छे इदारे को बड़ी जल्दी सेटअप किया गया, जिसको सारे गवर्नमेंट के इदारों ने सपोर्ट किया। मगर लीडरशिप की भी बड़ी अहमियत है, और इसमें से जो फैसले निकले उसके नतीजे के अंदर मुझे ये महसूस हो रहा है पिछले 20 जून से लेकर अब तक कि जो ग्राफ कोरोना का ऊपर जा रहा था वो कम से कम प्लेटो पर आया है। ये बकरीद का जो 1 महीना अभी है उसकी तैयारी के एतबार से बाजारों के अंदर एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क हर जगह पहने, ताकि यही इसकी एहतियात है। अपने हाथ धोएं, और बकरीद के अंदर मंडियों में जाना और वहां भीड़ लगाना, उससे भी गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई, जिससे कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद करने पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, लिहाजा खतरा अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ तिब्बी अमले और डॉक्टर्स सफ़े अव्वल पर हैं। हुकूमती कोशिशों से कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत को बढ़ाया गया। हमारी हुकूमत ने
اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جس طرح ان غریب لوگوں کے ڈور سٹیپ تک پیسے پہنچائے اور ان کو جو یہ سخت گھڑی ہے اس میں سے نکلنے کے لیے ایک کوشش کی جس کی کہ ساری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، جس شفافیت کے ساتھ اور جس میرٹ کی بیس پہ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، جو کہ 150 ارب کے قریب اب پہنچ چکے ہیں۔ کلینک اسلام آباد کا دورہ کیا اور کورونا وبا میں فرنٹ لائن ہیروز کا کردار ادا کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اطلاعات نے ڈاکٹرز اور طبی عملے میں ماسک اور سینیٹائزرز بھی تقسیم کیے۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے طبی استعداد کار میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ نئے ہسپتالوں کا قیام قومی جذبے کا عکاس ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ طبی عملے نے قومی جذبے کے تحت کورونا وائرس کا مقابلہ کیا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی سے وبا پر قابو پانے کے ساتھ کاروبار زندگی رواں دواں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں قائم 250 بستر کا یہ نیا ہسپتال وبائی امراض کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صرف 40 دن کے اندر یہ فیسلٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مکمل کیا گیا، اور یہ جو پوری اس ہسپتال کی کہانی ہے وہ ایک قومی جذبے کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں، وہاں پمس کے اندر، پولی کلینک کے اندر، سی ڈی اے میں، فیڈرل میں، تمام میں کیپیسٹی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ صرف پچھلے 2 ہفتے کے اندر 189 بیڈز کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر اسد عمر نے قدرتی آفات کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کے ہمراہ ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور وہاں فراہم کی گئی جدید ترین سہولتوں کا جائزہ لیا۔ یہ ہسپتال چین کے مالی تعاون سے صرف 40 دن میں تعمیر کر کے فعال کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی جذبے کے تحت نیشنل اینڈ کمانڈ آپریشن سینٹر کے 100 روز مکمل ہونے پر معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور CDA ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں فراہم کی گئی جدید سہولتوں کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہمارے ہیرو ہیں۔ MCOC کے بننے کے بعد پاکستان کی جو کرونا وائرس کی بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے جو کام تھا اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور اپنے تمام فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے انہوں نے جس طریقے سے کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہداشت کی ہے اس کا تو شکریہ پوری قوم نہیں ادا کر سکتی۔ خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے ہسپتالوں میں ڈیوٹی پر مامور طبی عملے کی کورونا کے خلاف کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو گلدستے، ماسک اور سینیٹائزرز بھی تقسیم کیے۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کی کورونا وائرس سے جلد صحتیابی کی دعا کی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 3,387 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 68 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,619 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,25,283 है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद मुतासरा मरीजों से कहीं ज्यादा है। अब तक 1,25,094 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 80,297, सिंध में 90,721, बलूचिस्तान में 10,717, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506, इस्लामाबाद में 13,292, गिलगित बल्तिस्तान में 1,536 और आज़ाद कश्मीर में 1,214 है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की पायदार तरक्की के लिए इकनॉमिक प्लान मुरतब करने का फैसला किया है। शहरों में 79 अरब रुपए से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10 मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब की सदारत में काबीना कमेटी इंसदाद कोरोना के इजलास और दीगर मसरूफियात के हवाले से देखते हैं ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बरवक्त इकदामात से मरीजों की तादाद में कमी हुई। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ईद उल अज़हा से 15 रोज कबल मवेशी मंडियां लगाने और SOPs मुरतब करने की हिदायत की है। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 79 अरब रुपए से 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज होगा। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में महकमा हाईवेज की जानिब से सड़कों की मेंटेनेंस और दीगर स्कीमों की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। ऐवान वज़ीर आला से जारी करदा मरासले के मुताबिक वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम सड़कों की मुरम्मत में कवायद ज़वाबित, टेंडर्स के तरीकाकार और फंड्स के इस्तेमाल समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेकर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तरक्याती स्कीमों में शफाफियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर नौजवान उस्मान डार ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 10 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 25,000 को कर्ज की अदायगी का सिलसिला जारी है। उस्मान डार ने कहा कि नौजवानों के लिए शॉप्स ऑन व्हील प्रोग्राम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को असर नौ फाल करने के हवाले से इजलास में कहा है कि गैर कानूनी ब्लड बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना अस्पताल का दौरा किया और हाई डिपेंडेंसी यूनिट समेत मरीजों को दी जाने वाली दीगर सहूलियात का जायजा लिया। महकमा सेहत पंजाब ने ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियां लगाने के हवाले से SOPs जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक मवेशी मंडियां शहरी आबादी से कम 2 किलोमीटर दूर खुले मकामात पर लगाई जाएंगी। बच्चों और बुजुर्गों का दाखिला ममनू होगा। मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासले को यकीनी बनाने समेत दाखिली और खारजी रास्ते अलहदा होंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के क़याम के 100 रोज मुकम्मल होने पर डॉक्टर्स, पुलिस और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले रजाकारों के एहसास में पेशावर में तकरीब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान मेहमान खुसूसी थे। अमाद अवान की रिपोर्ट देखिए। CM हाउस पेशावर में होने वाली तकरीब में कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में हुकूमत के शाना बशाना काम करने वाले सरकारी महकमों, रजाकारों और पुलिस और फौज के नुमाइंदों के अलावा उन डॉक्टरों और नर्सेज ने भी शिरकत की, जिन्होंने दिन रात न सिर्फ काम किया बल्कि इन SOPs पर भी अमल दरामद करवाया, जिनकी बदौलत कोरोना वायरस से अवाम को आगाही हासिल हुई। वज़ीर आला महमूद खान तकरीब के दौरान स्टेज से उठकर आम नशिस्तों पर बैठ गए ताकि उन लोगों को खिराज तहसीन पेश किया जा सके जिन्होंने बहरान के इस वक्त में हुकूमत का हाथ बटाया। एक तो अवेयरनेस की वजह से जो हमने कैंपेनिंग की थ्रू फ्रंट लाइन वर्कर्स, थ्रू ग्रास रूट लेवल, उसकी वजह से काफी लोगों में अवेयरनेस आई। लोगों में इतने अवेयरनेस आ गए हैं कि उन्होंने वो जो हम शुरू से कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन चीज़ों का ख्याल रखे, तो वो अब रखने लगे हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ
کہ इंशाल्लाह अब वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बढ़ते हुए केसेस थे वो कम से कम सतह पे इंशाल्लाह आने लगे हैं और इंशाल्लाह कुछ दिनों में अगर इसी तरह ये एहतियाती तदाबीर और यही समाजी रवैयों में इसी तरह के एहतियात जारी रहा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हम इस पे मुकम्मल तौर पे काबू पा लेंगे। डोर टू डोर हमने कैंपेन चलाया सोशल डिस्टेंस का, इसी तरह हमने मास्क सैनिटाइजर का। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला महमूद खान ने म्यूनिसिपल वर्कर्स, फायर फाइटर्स और जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कोरोना को काबू से बाहर होने से रोकने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें सर्व की। वजीर आला ने वीडियो लिंक पर डॉक्टर जावेद शहीद के अहले खाना समेत उन अफराद से भी बातचीत की जिन्होंने कोरोना से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। आखिर में वजीर आला ने रजाकारों में एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इससे पहले वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ और अमले के एजाज में तकरीब में शिरकत की और सूबे में कोरोना टेस्टिंग के लिए KMU की खिदमत को सराहा। आज का दिन उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई का दिन है जिन्होंने हुकूमत के इक़दामात पर एक टीम की तरह मिलकर काम किया। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की रिकवरी की शरह 56% हो गई है जो खुशाइन है। कराची में कोरोना वायरस टास्क फोर्स इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करके कोरोना वायरस से अमवात की शरह को काबू किया है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल खान कहते हैं कि हुकूमत सूबे में सेहत के निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे मनसूबाबंदी बना रही है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में अज़्म हिम्मत के 100 दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और कोयटा इंतजामिया की जिम्मेदारियां काबिल सताइश हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अफजल ने कहा है कि पाक फौज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और इंतजामिया ने इलाके में कोरोना से बचाव और उसकी रोकथाम के हवाले से काबिल तारीफ खिदमत अंजाम दी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के क़याम के 100 दिन मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौरी इक़दामात की वजह से कोरोना वायरस से बचाव और रिकवरी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान मिसाली सूबा बन चुका है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का काम जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवादर के तमाम मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मेगा एयरपोर्ट की तामीर पर $230 मिलियन लागत आएगी। उन्होंने कहा कि मंसूबा गवादर पोर्ट और शहर के लिए अहम साबित होगा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,92,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से ज्यादा रकबे का सर्वे किया जा चुका है। 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में विफाक, सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुतल्लिका इदारे शरीक हैं। बाज़ इलाकों में फ़ज़ाई स्प्रे भी किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि ज़राई टास्क फोर्स ने ज़राअत की तरक्की और किसानों को सहूलतों की फराहमी के लिए 12 निकाती मेमोरेंडम तैयार किया है। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में किसानों से खिताब करते हुए स्पीकर असद कैसर ने कहा कि ज़राई टास्क फोर्स ने पॉलिसी तैयार की है जिससे किसानों के मसाइल हल होंगे। डे टू डे जो इश्यूज आते हैं फार्मर्स के और खासकर ग्रोअर्स के, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, हम उसको इमीडिएटली टेकअप करते हैं। यानी आम के पास जो है ना एक ऐसा फसल है, ऐसा फल है कि वो बहुत जल्द जो है खराब हो जाता है। इसके लिए स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया, उसके लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे फैसिलिटी दी गई। काटन के हवाले से हम काफी काम कर रहे हैं। हमने तमाम स्टेक होल्डर को और खासकर फार्मर्स को भी हमने इसमें शामिल किया है ताकि फार्मर्स के मशवरे से हम कोई पॉलिसी बना सके। रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने कहा कि ज़राअत सूबाई मामला है, इसके बावजूद विफाकी हुकूमत इस शोबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। हम तकरीबन एक मुस्बित और जामे प्रोग्राम पे काम करें। इसमें 7 साल, 3 साल
और 1 साल का इंशाल्लाह रिवर्स में हमने काश्तकार की तमाम जरूरतों को देखते हुए उस पर काम होगा, इस प्रोग्राम बनेगा और वही यही कमेटी इंशाल्लाह पास करवाएगी। किसानों के नुमाइंदों ने ज़राअत की तरक्की के लिए दिलचस्पी लेने पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि किसानों के मसाइल हल होने से न सिर्फ ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा बल्कि देही इलाके भी तरक्की करेंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अवामी फलाह बहबूद के काम जारी हैं, जबकि माजी के हुक्मरानों ने अवाम को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन नालायक और करप्ट है, ये हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तफसील ताहिर क्लास्ट्रा से। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन की करप्शन कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये लोग रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। रेलवे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि ये साल रेलवे की तरक्की और इंकलाब का साल है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख अफराद को मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां देंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि जिन लोगों ने रेलवे को नुकसान पहुंचाया है उनके एहसाब का वक्त आ गया है। ये अल्लाह ने हमसे 2006-07 में काम लिया था कि हमने ML1 पे दस्तखत किए थे और ये लोग कमीशनें खा रहे थे, इंजनों की कमीशनें खा रहे थे, ऊपर वैगनों की कमीशनें खा रहे थे। तमाम केसेस जो है मैं नैब को लिखने लगा हूं कि तमाम रीओपन किए जाएं जो कमीशन के केस हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि गुज़श्ता रोज होने वाले हादसा कोस्टर ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। इससे कबल वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कोरोना से सेहत याब होने के बाद रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में इजलास की सदारत की। वफाकी वजीर को गुज़श्ता रोज शेखोपुरा में होने वाले अफसोसनाक हादसे की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट पर रेलवे अफसरान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ताहिर क्लास्ट्रा, PTV न्यूज, लाहौर। शेखोपुरा ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले सिख यात्रियों की आखिरी रसूमात नौशहरा के इलाके खैराबाद के शमशान घाट में अदा की गयी। तफसील बता रहे हैं पेशावर से मुदस्सिर खान। ट्रेन हादसे में जब हक होने वाले सिख यात्रियों की मैयत सख्त सिक्योरिटी में खैराबाद शमशान घाट लाई गई, जहां आखिरी रस्मात सिख मजहब के मुताबिक अदा की गई। हादसे में जब हक होने वाले सिख यात्रियों की मैयत पाक फजाइया के 730 के जरिए लाहौर से पेशावर पहुंचाई गई। एयरपोर्ट से एम्बुलेंसेज के जरिए मैयतों को गुरुद्वारा बाई जोगा सिंह, मोहल्ला जोगन शाह डबगरी मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ शुबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने गुरुद्वारा बाई जोगा सिंह में सिख कम्युनिटी के अफराद से इस हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने मोहल्ला जोगनशाह में वाक़े गुरुद्वारा का दौरा किया और ट्रेन हादसे में जम हक होने वाले सिख यात्रियों की लवाहिकीन से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े ने सबको रंजीदा किया है। सूबाई हुकूमत और सूबे के अवाम सिख भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान ने शेखपुरा ट्रेन हादसे में होने वाले कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर वफाकी वजीर शफकत महमूद के घर गए और उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब ने मरहूमा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख़्वानी की और उनके दर्जात की बुलंदी और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला कोलगाम में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत भारतीय फौज के 3 एहलकार जख्मी हुए थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाज़ा कश्मीर मकबूजा कश्मीर में इंसानी जिंदगियों पर बहुत भारी साबित हो रहा है और इस तनाज़े ने गुज़श्ता 7 दहाइयों के दौरान लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां लोग इंसानी हुकूक के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। भारतीय फौज और पुलिस की तरफ से मकबूजा इलाके में कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, इमलाक की तबाही और खवातीन की बेहुरमती मामूल बन चुका है।
गुज़श्ता माह जिला गांधरबल में लापता होने वाले कश्मीरी रिसर्च स्कॉलर हिलाल अहमद की अहल खाना ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि हिलाल अहमद को भारतीय फौज ने जबरी तौर पर लापता किया है। काबिज हुकाम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक सरकारी मुलाजिम ताहिर नजीर शाला के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया है। हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस और तहरीके वहदत इस्लामी ने सोपुर कस्बे में भारतीय फौज के हाथों एक शहरी बशीर अहमद खान के वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। भारतीय फौज ने बुध के रोज सोपोर कस्बे में बशीर अहमद खान को कार से घसीटकर बाहर निकाला और कमसिन पोते के सामने गोली मारकर शहीद कर दिया था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी खवातीन विंग ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम और कराची स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरे और रैली का इनेकाद किया। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी कश्मीर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मसूद खान ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा वादी को इंसानियत सोज बहरान का सामना है। भारत ने आर्टिकल 370 और 35A मनसूख करके जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके आबाई वतन में असीर बना दिया है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दहशतगर्दी के नाकाम हमले के बावजूद पूरे हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट की कारोबारी सरगर्मियों का जायजा लिया है। ज़िशान अहमद खान ने अपनी इस रिपोर्ट में। कारोबारी दिन 29 जून के आगाज पर दहशतगर्दों के नाकाम हमले के बावजूद भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल हुआ और 100 इंडेक्स में बुलंदी का रुझान बरकरार रहा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है उन्होंने इरादा किया एक बार फिर पाकिस्तान में आने के लिए। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये देखा इस पूरे हफ्ते में कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, जो सिक्योरिटी है, वो बहुत ही बेहतरीन है। इसे किसी किस्म का अंदरूनी या बैरूनी कोई खतरा नहीं है। दूसरी जानिब इनकी पॉलिसीज जितनी भी आ रही हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही है। कारोबारी हफ्ते के आगाज के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 242 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,181 पर बंद हुआ। दूसरे दिन इंडेक्स ने 34,424 की हद उबूर की और 34,421 पर बंद हुआ। तीसरे दिन 100 इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी 100 इंडेक्स में मुसलसल तेजी रही, जबकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स 35,105 की सतह पर पहुंचकर 35,051 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 73 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां लोग अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, वहीं बिजली की बंदिश से बच्चों की ऑनलाइन तालीम भी शदीद मुतासिर हो रही है। तफसील हसन नासिर की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने यहाँ के बासियों को एक अजाब में मुब्तला कर दिया है। शदीद गर्मी में 6 से 12 घंटे की बिजली की बंदिश से लोग बिलबिला उठे हैं। इधर लाइट नहीं होती, काम नहीं होता, और रात में जो है ना घर में जाते हैं वहाँ भी लाइट नहीं होती, वहाँ भी जो है ना परेशानी होती है। लाइटें जा भी रही हैं, उसके बाद भी बिल डबल आ रहा है। बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस तलबा भी सख्त परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि लोड शेडिंग से उनकी ऑनलाइन क्लासेस मुतासिर हो रही हैं। लाइट ना होने की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, न्यूज कोई सुन नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। हमारे घर में लाइट नहीं आ रही, हम पढ़ नहीं सकते। बिजली के इस शदीद बहरान के हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब बढ़ गई है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को गैस और फर्नेस ऑयल की सप्लाई बिला तातुल जारी है। शहर भर में कुंडों की भरमार भी लोड शेडिंग की एक वजह है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशानी का शिकार हैं और उनका मुतालबा है कि उन्हें फिलफौर इस अजियत से निजात दिलाई जाए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,13,45,000 से तजावुज कर गई, जबकि 5,32,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 64,21,000 मरीज बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां 29,07,000 अफराद मरज से मुतासर हैं, जबकि 1,32,000 अमवात हो चुकी हैं। ब्राजील की बात करें तो वहां हलाकतों की तादाद 63,000 से बढ़ चुकी है।
ادھر ارجنٹائن میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد نے پلازما عطیہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سرد موسم اور بارش کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں نے ملک بھر میں قائم سینٹرز میں پلازما عطیہ کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم کسی کی زندگی بچانے میں مدد کر سکتے ہیں تو اس سے اچھا کوئی کام نہیں۔ پلازما ان تمام مریضوں کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے جن کی حالت کورونا وائرس کے باعث انتہائی تشویشناک ہے۔ عیدگاہ شریف راولپنڈی میں اتحاد امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری نے کہا کہ علماء کرام علم کو پھیلائیں اور اپنا حق ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ انتشار پھیلانے والے دشمن ملک کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تمام مسالک کے لیے اس کی پالیسیاں، یہاں کے رہنے والے جتنے لوگ ہیں، یہ ریاست ان کی ماں ہے اور ان کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی۔ سجادہ نشین صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان نے کہا کہ اسلام میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارا ملک اور مذہب ایسی کسی بات کا متحمل نہیں ہو سکتا جس سے فرقہ وارانہ فساد کو ہوا ملے۔ ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان نے راولپنڈی آرٹس کونسل میں ٹائیگر فورس کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹائیگرز نے خود کو انسانی خدمت کے لیے وقف کیا اور کورونا SOPs پر عمل کرایا۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ کمیٹی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ بھارتی کالم نگار اور سیاسی کارکن سدھندرا کلکرنی نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کے مہاراجا نے کبھی بھی گلگت بلتستان پر حکومت نہیں کی۔ مودی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو فوج کے زور پر حاصل کرنے کا مطلب بھارت کی توسیع پسندانہ سوچ ہے۔ جب برطانیہ نے 6 جون 1947 کو گلگت بلتستان کو مہاراجا ہری سنگھ کو دینے کی کوشش کی تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ سدھندرا کلکرنی نے کہا کہ BJP کے 99% وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ گلگت بلتستان میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں یا وہاں کے بڑے قصبے کون سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی مہربانی کر کے تاریخ کو پڑھیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تحریک انصاف نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں اور قواعد 11 جولائی تک طلب کر لیے۔ قواعد کی فراہمی اور ٹکٹ کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار PTI کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ PTI پارلیمانی بورڈ درخواستوں کی پڑتال کے بعد امیدواروں کا اعلان کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی نے کہا کہ گلگت بلتستان کا انتخاب خطے کی سیاسی تاریخ میں نئے دور کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ پاکستان پوسٹ نے بین الاقوامی صارفین کے لیے EMS پلس سروس کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے جس سے بین الاقوامی ڈاک کی جلد اور بروقت ترسیل ممکن ہوگی۔ تفصیل جانتے ہیں لاہور سے معین سلطان کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وبا کی وجہ سے جہاں عالمی معیشت میں تمام شعبے بری طرح متاثر ہوئے، وہیں بین الاقوامی پروازوں کے تعطل سے عالمی ڈاک کی ترسیل کا نظام بھی متاثر ہوا۔ پاکستان پوسٹ نے صارفین کو عالمی ڈاک کی ترسیل میں آنے والی مشکلات کے پیش نظر خصوصی انتظامات کو حتمی شکل دیتے ہوئے صارفین کے لیے بین الاقوامی ڈاک کی بروقت ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے متبادل ذرائع نقل و حمل کو بروئے کار لاتے ہوئے EMS پلس سروس کو فعال کر دیا ہے تاکہ پاکستان پوسٹ کے صارفین کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ EMS پلس سروس پاکستان پوسٹ نے 2 بین الاقوامی کوریئر کمپنیوں کے اشتراک سے شروع کی ہے جو اس وقت 34 ممالک میں اپنی بہترین سروسز فراہم کر رہی ہے۔ اس سروس کے تحت مختلف ممالک میں 72 گھنٹوں کے اندر ڈاک کی ترسیل یقینی بنائی جا رہی ہے۔ EMS پلس بیسکلی پاکستان پوسٹ کی نئی سروس ہے اور کافی فیمس ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے ریٹس بہت ریزنیبل ہیں۔ ہمارے پاس 2 کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ تھرو دیئر فلائٹ 34 کنٹریز کو ہم جو ہے اس سروس کے تھرو ڈاک کی ترسیل کرتے ہیں۔ پاکستان پوسٹ کی طرف سے جہاں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ملک اور بیرون ملک ڈاک کی ترسیل کے عمل کو جاری رکھا جائے، وہیں کورونا وبا کی وجہ سے SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان پوسٹ کی EMS پلس سروس کے آغاز سے عوام کو کم قیمت میں بین الاقوامی ڈاک سروس کی بہترین سہولتیں حاصل ہوں گی۔ معین سلطان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
नाज़रीन, रवां साल मुल्क में 11 से 12 लाख टन आम की पैदावार मुतवक्के है। मुल्तान का आम मिठास, खुशबू और जायके के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। आम की पैदावार और इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से देखते हैं इमदाद हुसैन की ये रिपोर्ट। फलों के बादशाह आम की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। मुल्क की पैदावार का तकरीबन 70% आम मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान के बागात से हासिल होता है। मौसमी और लजीज फल होने की वजह से मुल्की और गैर मुल्की मंडियों में इसकी तलब में हर साल इजाफे का रुझान रहता है, लेकिन इस साल मौजूद मौसमी हालात न होने की वजह से बागात पर मनफी असरात मरतब हुए हैं और ख्याल किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के असरात की वजह से इस साल 1 लाख टन के करीब ही आम बरामद हो सकेगा। सिंध की फसल तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हुई है, अलबत्ता पंजाब में थोड़ी कम हुई है। पिछले साल 15 लाख टन हुई थी, इस साल लग यही रहा है कि 11-12 लाख टन होगी। इस दफ़ा एक नई बीमारी ने अटैक किया है जिसको बोरर कहते हैं। वो एक स्पॉट की सूरत के अंदर सिंधड़ी, सफ़ेद चौसा और मौसमी चौसा के ऊपर अटैक कर रही है। मौसमी पेचीदगी की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है और यील्ड भी काफी कम है और फल का साइज भी नहीं बना इस दफा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 100 से ज्यादा इकसाम के आम पैदा होते हैं। जायके और मिठास के लिहाज से चौसा, अनवर और टोल, सरूली, दुसेरी और लंगड़ा शहर फहरिस्त हैं। मुल्तान का आम न सिर्फ खुशबू और जायके के हिसाब से दुनिया भर में मकबूल है, बल्कि मुल्क की मैशियत में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। और नाज़रीन, पाकिस्तान में फलों के बादशाह आम को लोग मुख्तलिफ तरीकों से खाना पसंद करते हैं और जब किसी गैर मुल्की को सिखाना हो कि आम कैसे खाया जाता है तो लोगों के मशवरे और भी दिलचस्प हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के सफीर डॉक्टर जेफरी शॉ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने एक ट्वीट में पाकिस्तानी आम की तारीफ करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी आम की पजीराई बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके इतने महज़ब तरीके से आम खाने के अंदाज ने पाकिस्तानियों को ज्यादा मुतासिर नहीं किया। जिसके बाद डॉक्टर जेफरी शाह ने एक ट्वीट में अपने फॉलोअर्स को बताया कि उन्होंने आम खाने का सही तरीका सीख लिया है और साथ ही हाथ से आम खाते हुए अपनी तस्वीर भी शेयर की। दस्का से ताल्लुक रखने वाले शुएब जमील ने अमेरिका में नेशनल हिस्ट्री डे 2020 के मौके पर मुनक्किदा मुकाबले में पहली पोजीशन लेकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये मुकाबले हर साल अमेरिका में मुनक्किद होते हैं जिनमें शरीक अमरीकी और गैर मुल्की तलबा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इस मुकाबले में शुएब जमील ने अपने 3 गैर मुल्की साथियों के साथ मिलकर पहली पोजीशन हासिल की। उनके प्रोजेक्ट का उन्वान रेनबो चिल्ड्रन ऑफ गॉड था। पीर मेहर अली शाह बारानी ज़राई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमरुज़्ज़मान ने कहा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलबा को जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में नए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ब्लॉक का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन सहूलतों से तहकीकी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। इस मौके पर वाइस चांसलर ने ब्लॉक का संग बुनियाद रखा और तलबा और फैकल्टी पर जोर दिया कि ज़राअत में किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करें। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गवादर के इलाके कलांच में ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में मुनशियात कब्जे में ले ली है। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 1275 किलोग्राम की आला क्वालिटी की चर्स जमीन में छुपाई गई थी और बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कहा है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरगर्म अमल है। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, खित्ता पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत दादू 48, मोहनजोदाड़ो 47, बहावलपुर और रहीम यार खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
मौसम का हवाला आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेलों की खबरों का। खेलों में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और मोहम्मद हसनैन ने कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। गुज़श्ता रोज वॉस्टरशायर पहुंचने वाले तमाम खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट मनफी आए हैं। खिलाड़ियों की टेस्टिंग इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के कवानीन के मुताबिक की गई। टेस्ट के नताइज मनफी आने के बाद 6 खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह हक का कहना है कि खिलाड़ी 3 माह बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिटनेस के लिहाज से देखा जाए तो खिलाड़ी फिट महसूस हो रहे हैं। खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग में भी हमारी सोच से बहुत बेहतर हैं। मजीद प्रैक्टिस से और भी बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल प्रैक्टिस मैचेस बड़ी अहमियत के हामिल हैं और अगले मैचेस में बाकायदा 11 बनाकर मैचेस खेले जाएंगे। वॉस्टरशायर में 4 रोज की ट्रेनिंग और 1 दिन आराम के बाद पाकिस्तान टीम आज पहला 2 रोज इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ कोरोना से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। फास्ट बॉलर का तीसरा कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, जिसके बाद वो मजीद कुछ अर्सा करंटीना में रहेंगे। हैदर अली और इमरान खान सीनियर का नतीजा मनफी आया है, जबकि काशिफ भट्टी की रिपोर्ट आना बाकी है। मनफी रिपोर्ट वाले खिलाड़ियों को लाहौर बुला लिया गया है। तीनों खिलाड़ियों के नतायज दूसरी मरतबा मनफी आने की सूरत में उन्हें इंग्लैंड भेजने के इंतजाम किए जाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश टीम की क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, डोमिनिक बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉरी बर्न्स, जॉर्ज बटलर, जिग क्राले, जॉय डैनली, ऑली पॉप, डॉम सैबली, क्रिस वॉक्स और मार्क वुड शामिल हैं। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। नॉर्विच में खेले गए मैच में मेजबान टीम के खिलाफ ब्राइटन ने 1-0 से कामयाबी हासिल कर ली। नॉर्विच की टीम बेहतर खेल के बावजूद मैच में गोल न कर सकी। फातेह टीम ब्राइटन की तरफ से मैच का वाहिद गोल लैंड्रो टोरेस्टन ने 25वें मिनट में किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त सिखाए जा रहे हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के भी दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। मैड्रिड में खेले गए मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने मालोर्का को एकतरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से शिकस्त दे दी। खेल के 29वें मिनट में अल्वेरो मोराटा ने गोल करके मेजबान टीम को बढ़तरी दिलाई। पहले हाफ के आखिरी लम्हात में मोराटा ने बढ़तरी दुगनी कर दी। फातेह टीम की जानिब से तीसरा गोल कोके ने 79वें मिनट में किया। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना को 2021 के बाद खैरबाद कहने की तैयारी कर ली है। बार्सिलोना के कप्तान लियोनेल मेसी ने क्लब से मुआहदे में तौसीक की बातचीत खत्म कर दी। मेसी मौजूदा मुआहदे की तकमील पर रुखसत होने की तैयारी कर रहे हैं। हालिया मुआहदा 2021 में मुकम्मल होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेसी और उनके वालिद जॉर्ज ने मुआहदे में तौसी पर तबादला ख्याल शुरू किया था, लेकिन अब वो कैंप नाउ में मजीद रुकने का कोई इरादा नहीं रखते। फीफा ने कतर में शेड्यूल 2022 वर्ल्ड कप के दौरान रोबोट रेफरी मुतारिफ करवाने की तजवीज शुरू कर दी है। डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जोहान्स होल्जमोलर ने कतर में शेड्यूल 2022 वर्ल्ड कप के दौरान रोबोट रेफरी मुतारिफ कराने के मंसूबे की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि नए सिस्टम में हम मॉमन रेफरीज की जगह रोबोट सामने लाएंगे। हमारा इन्हिसार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर होगा, जिसके जरिए ऑफ साइड के फैसले दिए जा सकेंगे। इस्लामाबाद कबड्डी एसोसिएशन के आइंदा 4 साल की मुद्दत के लिए इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। मोहम्मद कामरान आदिल चेयरमैन, राव मोहम्मद फैसल और हाजी मोहम्मद शरीफ को मुत्तफिका तौर पर बिलतरतीब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। फरत अब्बास काजमी नायब सदर और चौधरी मोहम्मद सुल्तान खजांची, जबकि अरसलान बबलू और चौधरी शाहिद इकबाल मजलिस आमला के रुकन होंगे। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेंडस की तरफ। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। परियों कलियों की आबादी
जन्नत है कश्मीर की वादी। इस वादी के तूलो अर्ज में सब्ज चरागाहों की खुशबू लहराती है। फूलों और रंगों की आहट मीलों दूर से सुन जाती है। इसकी एक झलक ही रूह को महकाती है। यहाँ तो शब भर मियां मोहम्मद बख्श के दिल पर शेर चमकते हैं, दीवाने जुगनू बनकर। सैफ मलूक हर दिल में जागे खुशबू बनकर। झीलें इस मोनी वादी की सब्ज आंखें हैं। नीलम जेलम और चनाब के बहते दरिया रगे हैं इसकी। झरने इसकी आवाजें हैं। सुर वाले जिनको सुनते हैं, गुर वाले भी सर धुनते हैं। इन दरियाओं के अलबेले माये टप्पे ऐसे मीठे जैसे फूले गालों वाले दो बच्चे कश्मीरी बोले, हुस्न के बंद दरीचे खोले। बर्फ की शालें ओढ़े पीर पंजाल की वादी, जिसकी तेज हवाओं में मचले आजादी, जिसके झरने नज़में और गजलें कहते हैं और हिना की खुशबू लहराते रहते हैं। खुशबू के हलकोरे लेते गर्मा गर्म और खस्ता ये कश्मीरी कुलचे, ताजा साग और मक्की की रोटी के खुशबूदार निवाले बचपन के यारों की सूरत दिल में यूं घर कर जाते हैं, धड़कन धड़कन लहराते हैं। जाड़े और बर्फीले मौसम से कुछ पहले बकर वालों के कुछ कुंबे अपनी भेड़ों के झुरमुट में चलते चलते बांसुरिया की मीठी ताने लहराते हैं। सर्फ चनारों की ये धरती, मस्त नजारों की ये धरती, शाह बलूद की इस वादी पे शायर ने क्या खूब कहा था। खाक के इस कुर्रे पर जन्नत अगर कहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। यारो, ये वादी जन्नत है और जन्नत तो हर अहले ईमान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।
یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔